Hello friends, welcome to Unacademy. You just net. This is Simran Nagra, your economics mentor. I've done my economic honors from Jaipur and did my masters from Mumbai. Just after the completion of my masters, I've started working in various colleges for various streams. I've also worked in stock market that could enhance your practical approach towards the same subject. ये हमारे UGC नेट के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. You can choose any one of them or you will get to see amenities related to these subjects only on the same platform. So this kind of facility like free classes, all you are going to get for free on the subscription basis. And अगर अपन बात करते हैं what else you are getting on the plus subscription, like live classes are going to be there, quiz sessions are going to be there, structured courses, unlimited access अपन को मिलने वाला है. और सब्सक्रिप्शन में भी अपन को फ्री एक्सेस है वैसे क्लास का. if anybody is there who could not afford to plus or iconic subscription, फ्री क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है. यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है. सो प्लीज गो थ्रू दोज क्लासेस एंड ट्राई टू हैव द बेनिफिट फॉर फ्री. एंड आइकॉनिक की अगर अपन बात करते हैं व्हाट एल्स एडवांटेज वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट, लाइक पर्सनलाइज मेंटोरशिप देखने को मिलेगी, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, गाइडलाइंस एंड स्टडी मटेरियल वी आर गोइंग टू अवेल द मटेरियल्स एज वेल. लाइक प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक की बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी ऑन पर्सनलाइज बेसिस, दिस इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव. एंड plus subscription ki what kind of payment you have to pay if you are taking for 24 months, like 833 if you have to take for 24 months, and 12 months के लिए अगर लेते हो तो 1146. and if you are using the code given below then you just have to pay 90% as 10% is off. And iconic की बात करते हैं, again I am telling you that this is on the personalized basis, and personalized basis की बात करते हैं तो you have to pay 1875 for 24 months की बात करते हैं तो पर मंथ आपका 1875, एंड 12 months की बात करते हैं तो you have to pay 2167. and again if you are using the code you will get discount on it. But what benefit you are getting on per plus or iconic subscription, like extra should be there if you are paying for something, live classes, test series, practice papers, structured schedule देखने को मिलेगा. Even after that you are getting any difficulty, we are here to assist you. प्लस अगर इन सब की बात करें विच आर कमिंग ओनली अंडर द कैटेगरी ऑफ आइकॉनिक, कुछ तो एक्स्ट्रा है. क्या एक्स्ट्रा है वो है पर्सनलाइज मेंटोरशिप. एंड पर्सनलाइज बेसिस पे आपको सेशंस देखने को मिलेंगे, वेदर इट वुड बी फॉर बूस्टर और डाउट सॉल्विंग, गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू सेशंस एज वेल. अब ये हमारी यूजीसी नेट की टीम है जो अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट की तैयारी करवाती है. तो यहाँ पे आपको यू आर नॉट गेटिंग flexibility over the subjects only, but you are getting the flexibility over the faculty as well. And if you are getting inappropriate content, अगर कोई भी inappropriate content देखने को मिलता है, you can claim over it. अब देखो ये स्पेशल क्लासेस है, we are trying to make with the passing time more interactive sessions with you people so that you can get proper notification, interactive classes, polls would be there, raise a hand, कोई problem है you can raise your hand, so it would seem like live classes are conducted. And the notes की बात करते हैं तो you will be getting if you have important point on it. Like अगर अपन बात करते हैं स्पेशल क्लासेस की like मैं क्लास ले रही हूँ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की क्लासेस मेरी कंडक्ट हो रही है, और दीज आर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आई हैव टेकन इनटू द कंसिडरेशन. प्लीज गो थ्रू दी स्पेशल क्लासेस विच इज अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी ऐप. एंड ये ऑफर की बात कर रहे हैं जो कि दिस इज ओनली अवेलेबल टिल द 11th of August. हरी अप गाइज, डू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 6 or 12 months so that you could get the opportunity of having 2 months extra. तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं, टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द क्रिप्टो करेंसी. अपन जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो अपने दिमाग में टर्म आती है डिजिटल, ठीक है. तो यू कैन टेक इट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अपन बात करते हैं कि शायद डिजिटल करेंसी है और ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली है. इट्स अ मीडियम ऑफ करेंसी, बट वी कैन एड वन पॉइंट, यू कैन टेक इट एज द असेट एज वेल, ठीक है. इट हैज द पावर और कैपेसिटी टू होल्ड द वैल्यू, ठीक है. होल्ड द वैल्यू की बात करते हैं मतलब आप स्टोरेज के फॉर्म में रख सकते हो, और असेट को आप क्या करते हो, इफ यू आर स्टोरिंग दैट असेट यू कैन सेल इट एनी टाइम एट द टाइम ऑफ नीड, ठीक है. तो यू कैन ट्रीट दिस एज द एसेट एज वेल. एक करेंसी से आपके दो काम हो रहे हैं. यू कैन ट्रीट इट
दिस करेंसी एज द असेट एज वेल। ठीक है, अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ कि भाई यू कैन ट्रीट इट एज द डिजिटल गोल्ड एज वेल। ठीक है, डिजिटल गोल्ड बोला है तो गोल्ड नाम से अपने सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि दिस इज एफिलिएटेड टू द असेट, वी आर मेकिंग असेट आउट ऑफ, वी आर क्रिएटिंग असेट आउट ऑफ द करेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इसमें ये देखने को मिलता है कि इट इज क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि बहुत सारे मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपको जो डेटाबेस है जो कंट्रोल करती है वो बहुत डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम से ये काम चलता है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर इसको रन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं हर एक ट्रांजैक्शन को। ठीक है, इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, रिकॉर्ड स्टोर्ड होते हैं लेजर फॉर्म में, ट्रिपल एंट्री होती है, तो लॉट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी यू गेट टू सी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बोले तो थिंग्स आर लाइक ट्रांसपेरेंट के साथ फॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट भी तो आ रहा है ना। ठीक है, मतलब कोई चीज फेक नहीं नजर आएगी आपको। ठीक है, थिंग्स आर सिक्योर यू वुड से। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी से हर एक जो भी स्ट्रॉन्ग आपकी क्रिप्टोग्राफी है वो आपका ऐड करके रखती है हर एक रिकॉर्ड्स को। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो बात करते हैं बैकग्राउंड इंडिया के बिहाफ पे। अगर अपन बात करते हैं तो अपन को पता चलता है कि भाई 2018 में अपन ने पता है क्या किया था, आरबीआई ने बैन कर दिया था कि कोई भी रेगुलेटेड मतलब बॉडी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी डिजिटल करेंसी को। ठीक है, 2018 में ये बात की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज ट्रीटेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द पॉइंट ओवर हियर, मूव अपन जो आज के मूव की बात करते हैं और ट्रेंड्स एनालिसिस जब करके देखते हैं कि भाई जो सेंट्रल बैंक है डिजिटल करेंसी का, क्या ये बेनिफिट लाएगा। अगर अपन स्मॉल कंट्रीज की बात करते हैं, इक्वाडोर, टूनेशिया और स्कैंडिनेविया, इन सब कंट्रीज की बात करते हैं, दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड दिस इन द पायलट मोड। देखो बात ये है कि अगर यूएस रेगुलेटर को बिल्कुल भी ग्रीन सिग्नल मिल गया ना तो वो इंडिया को तो अकम्पनी करके चलेगा। ठीक है, और वी गेट टू सी इन्फ्लुएंस ऑन आर इकोनॉमी एज वेल, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, वो कैसे आएगी वो भी पढ़ेंगे अपन। प्लस अपन को जो लिंकेज देखने को मिलेगा वो यूपीआई के थ्रू देखने को मिलेगा। जैसे आज भी अपन गूगल पे या फिर अपन फोन पे की हेल्प से अपन जो पेमेंट करते हैं तो वी आर एफिलिएटेड विद द टर्म यूपीआई। ठीक है, यही तो डिजिटल ट्रांसफर कर रही है सब चीजों को। ठीक है, ट्रांजैक्शन इसी के थ्रू हो रहे हैं, यूपीआई के थ्रू। तो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू मेक लिंक विद द डिजिटल करेंसी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक अगर मान लो कोई भी एस्टिमेशन बिफोर मेकिंग आइडिया अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में सोचने से पहले अपन एस्टिमेट करके चलते हैं ना प्लानिंग के साथ कि भाई अगर अपन ये चीज ले आते हैं कंट्री में तो व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन वी गेट टू सी इन द जीडीपी। तो अपन को पता चलता है कि भाई ये जो 2-3% आपकी जीडीपी बढ़ने वाली है, इफ यू आर कमिंग विद दिस मूव, गेटिंग माई पॉइंट, मतलब 1% भी अगर आपका इंक्रीज हो जाता है ना वो 25 बिलियन पर ईयर लेके आता है। तो दिस इज ह्यूज। ठीक है, वी शुड वर्क ऑन इट। क्यों वर्क करना चाहिए वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अब देखो सबसे पहले आरबीआई के अगर सुन लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इनके मूव्स होंगे ही सिंस इट इज रिलेटेड टू द करेंसी, तो ये तो काम करेंगे। तो इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अपन मूव कर रहे हैं कि किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट करना है। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी यूज कर ली है ये चीज। दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं कि भाई एक बिल की तो बात कर रहे हैं जो रेगुलेट करने वाला है। देखो रेगुलेशन की अपन को जरूरत पड़ती है इफ यू आर मेकिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी इन द सिस्टम। ठीक है, करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी अगर ला रहे हैं तो ये ह्यूज इंपैक्ट देती है। अगर कुछ भी एडिशन लाते हैं तो वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा जब अपन को पता है कोई तो पर्टिकुलर बॉडी है जो इस डिजिटल सिस्टम को देखने वाली है, तो उसी के लिए अपन बिल लाने वाले हैं। इट इज येट टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, 2021 में ही होना है वो, बट इट इज येट टू इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए बिल अभी। ठीक है, वी आर प्लानिंग ऑन इट। अब देखो यहाँ पे डिजिटल करेंसी की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें होंगी। अगर रेगुलेटरी बॉडी होगी तो क्या होगा, एक प्रॉपर रेजिलेंट फीचर मिल जाएगा, लैंडस्केप मिल जाएगा, जो सपोर्टिंग हैंड यू कैन से। जब सपोर्टिंग हैंड होगा तो लोगों के लिए एक रिस्क की अवॉइडेंस मतलब कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। कॉन्फिडेंस जनरेट मतलब बैंकिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस अगर जनरेट हो गया तो दे विल मोर ईगर टू मेक इन्वेस्टमेंट ना, और इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा होगा तो कंपटीशन बढ़ेगी, और जहां भी कंपटीशन होता है वहां पे इफिशिएंसी देखने को मिलती है।
ठीक है, फिर आप इजीली अपनी पेमेंट नीड को फुलफिल कर सकते हो, मतलब इजीली अगर एक्सेसिबल हो रहा है तो यू कैन मेक फुलफिलमेंट ऑफ द नीड। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है भाई, अवेलेबिलिटी हो रही है करेंसी की भी, और आपके जो भी असेट, जो भी कैपिटल फॉर्मुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, इजीली क्रॉस बॉर्डर काम हो रहा है। तो थिंग्स हैव बिकम इजियर विद द डिजिटलाइजेशन। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ही देखने को नहीं मिली है, ठीक है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी जब देखने को मिलती है तो अपन को एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ट्रांसपेरेंसी तो आ गई, यहाँ पे करप्शन का खुलासा बहुत अच्छे से होने वाला है, ठीक है। करप्शन का खुलासा क्यों? क्योंकि थिंग्स आर बिकमिंग ट्रांसपेरेंट, हर एक रिकॉर्ड्स है कि क्यों, कब और कहाँ लिए गए हैं ये चीजें, ठीक है। थिंग्स आर बीइंग रिकॉर्डेड ट्रिपल टाइम्स, ठीक है, ट्रिपल अकाउंट में इनका लेजर बनता है। तो यहाँ पे जो क्रिप्टोग्राफी है वहां पे हर एक रिकॉर्ड इज एडेड, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी अपन को देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ है, अपन को रेगुलेट करने की जरूरत है, रेगुलेशन बॉडी तो होनी जरूरी है। रेगुलेशन होता है तो पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि somebody is there who is holding this सिस्टम और करेंसी, ठीक है। फिर क्लैरिटी की लोगों को समझाना जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन इज देयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो भी ई करेंसी आती है, डिजिटल करेंसी आती है, तो उसका काम क्या है, मतलब एक इंफॉर्मेशन में थोड़ी पॉइंट होना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन क्लियर है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात कर देते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग केवाईसी नॉर्म्स, मतलब आपको वेरिफिकेशन वगैरह की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं, वो तो प्रॉपर हो रही है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं कि यूपीआई वगैरह से ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग होगा ना तो सिक्योर रहेगी, जनता भी थोड़ी कम डरेगी इस मामले में, ठीक है। कम डरेगी इन द सेंस कि भाई उनको कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तभी वो इनिशिएटिव ले पाएगी इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के लिए। ट्रांसपेरेंसी अपन को पता ही है, देखो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, चीजें इजी हो रही है और लीगल मैंडेट्स इजी हो रहे हैं, तो उससे अपन को क्या देखने को मिलता है कि भाई एंटरप्रेन्योरियल वेव आ रही है, पीपल आर बिकमिंग मतलब ईगर टू मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिजनेस वगैरह एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें अपन डिस्कस करने वाले थे। और अगर मैं बता दूं, पेमेंट सोल्यूशन अभी बात की गई है कि भाई ई रुपए आने की बात है, ठीक है, लॉन्च करने की बात है, डिजिटल पेमेंट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक वॉच माय स्पेशल क्लासेस ओवर द अनअकैडमी ऐप. Things are so important over there related to the macroeconomics. If you have enjoyed this lecture, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.